Today's topic is multiple integrals. So this is unit 4th of our syllabus. Now what is multiple integrals? So you already know what is integral. So integral is with respect to single variable. Means you simply know what is the integration of suppose x square with respect to x. What is the integration of log x? What is the integration of sine x into x with respect to x? So it means that you are finding out the integrals with respect to single variable. So now we have the multiple integrals, means the double it is either double integration or triple integration. So means in single integration, what you do, you integrate the function with respect to single variable. Means for example, like I told you, suppose the integration of x square with respect to x. But now we have a double integral or triple integral, means the integration with respect to xy, the integration with respect to xyz. So simultaneously we have more independent variables, xy or xyz. So there are two types of integration here. This is double, we say this double integration, this we say this is triple integration. Clear? So these are called multiple integrals, means integration more than one time. So means more with respect to more than one variable. So these are called multiple integrals. It is called, mean the double integration is called double integrals, and this is three times means triple integration. So here we assume that the integrand f is continuous at all point inside and on the boundary of the region R or T. So this integrand, this is your function with which you have to integrate with respect to x, with respect to y. So this integration is over some region, because you know that a definite integral means where the limits are given, but without limits you can integrate the function. But here in double integration, what we have to do, we have to integrate this function f of xy with in a given region. Suppose this is your region. So the under over this region you have to integrate this. So from this region you will get the limits of x and y. So if you take this um region, this R region, so here we have the x varies from this point to this point, and y varies from this point to this point. Clear? I repeat that this is your double integration, means you have to integrate the function over this region. This is 2D figure. So we have the means here the lower limit of x is here at this point, and the maximum x is going up to here. Clear? So this is these are your limits of x variable. And similarly, if you say over this region from this point of y, the y varies up to this point. This is the maximum value of y. Here you will get the maximum value of y, and here you will get lower value of. So y is it varies from this point to this point y, and x varies from this point to this point. So here we have two limits. So the purpose of region means we have to integrate over the given region R. That means we have to find out the limits from this region. What are the limits for x? What are the limits of y? So this is the same thing is written here, double integrals. So f of xy is your integrand, means this function you have to integrate this function, and this double integration over the region R is defined as I, means I is for integration. It is double integration of f of xy, means this function with respect to x with respect to y. So the limits of xy you will get from the region. So this will be given with the questions. So now how to evaluate the double integrals? So there are two ways. What we have to do means, because we have two limits, one for x and one for y. So there are two ways. Either you first integrate the function with respect to x, means like this,
f of xy into dx. So first integrate with respect to x, then whatever the integration is there, now you integrate that function with respect to y. So the same thing is written here. This is we can evaluate the double integration in two ways. One way is first integrate with respect to x and then integrate with respect to y. Means first this is your given function f of xy. So first integrate this with respect to x, keeping y constant, and after this integration you have to again integrate that function with respect to y, and now we will keep x as constant. Clear? क्या करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करिए, y को कांस्टेंट ही ट्रीट करिए, फिर जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको आपको फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और x को कांस्टेंट रखना है. सो दिस इज वन टाइप और वन प्रोसीजर. और इन द रिवर्स प्रोसीजर क्या कर सकते हो आप, फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x. सो अब दूसरा क्या करेंगे, आप पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे इस फंक्शन को और x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, फिर जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको में फिर क्या करना है आपको, फिर x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए और y को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए. सो देयर आर टू वेज फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन. So this is means again the consider two cases. So first case means suppose this is your reason. Like I told you, we are evaluating the double integral. So one reason will be given to you in the 2D, means in two-dimensional figure. So this is your reason of integration. So you have to integrate the function over this region. So in this figure you can observe that x, the minimum value of x is this and the maximum value of x is this, means x varies from this point to this point. Similarly the y varies from this point to this point. This is your maximum value of y. Clear? So there are two cases. क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, पहले जिसके रिस्पेक्ट में भी आप करोगे, अगर हम इस फिगर को देख रहे हैं तो ये पूरे फिगर में ये कोई फंक्शन, ये कोई रीजन है जिसमें x और y में एक रिलेशन दिया होगा. सो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि लोअर लिमिट ऑफ y, तो y की लोअर लिमिट यहाँ है, इस फिगर से कम नहीं है y और इस कर्व से मैक्सिमम नहीं है, तो y की वैल्यू इन दोनों फिगर के बीच में है. तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x. इस कर्व पर, इस कर्व की जो भी इक्वेशन होगी उसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x. वो हो गई लोअर लिमिट ऑफ y ऑफ द इंटीग्रेशन. एंड सिमिलरली इस कर्व पर y की जो भी वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ x, वो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो आपको क्या करना है, पहले इंटीग्रेट करना है phi x से psi x. तो वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट केस क्या है, वही हमने जैसे मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, दो वे हैं, या तो पहले x के रिस्पेक्ट में कीजिए फिर y के रिस्पेक्ट में कीजिए, या फिर पहले y के रिस्पेक्ट में कीजिए फिर x के रिस्पेक्ट में. हम दोनों वे से कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम. सो हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं व्हेन हम पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो जो इंटरनल लिमिट्स हैं या फिर हम जिसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे उसकी लिमिट्स जो होंगी वो वेरिएबल होंगी. क्लियर? आपको क्या करना है, ये रीजन है और हम पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y की पहले हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ x, मतलब वेरिएबल लिमिट्स हम कैलकुलेट करेंगे. और इस पूरे रीजन में फिर x की कांस्टेंट लिमिट, तो x यहां से लेकर यहां तक y कर वेरी कर रहा है. सो दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन कि हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं. कैसे, पहले आपने क्या किया, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो यू नीड द लिमिट्स ऑफ y. तो ये जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, वेरिएबल लिमिट्स होंगी इन टर्म्स ऑफ x. तो y की लोअर लिमिट, यानी y की लोअर लिमिट क्या है, इस कर्व पर है, और ये कर्व क्या है, सपोज y इज इक्वल टू 5x है. सो ये होगी लोअर लिमिट. सिमिलरली y मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है इस रीजन में, तो इस रीजन में y की अपर लिमिट क्या होगी, वो कोई दूसरा फंक्शन सपोज psi x हो गया. तो ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, और x को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. फिर आफ्टर इंटीग्रेशन एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, जो फंक्शन आएगा वो पूरा का पूरा किस में होगा, x में होगा. क्लियर? क्यों, आपने क्या किया, इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट किया और y की लिमिट लगा दी. y की लिमिट क्या है, इन टर्म्स ऑफ x, और x को कांस्टेंट यहां पर ट्रीट करोगे. तो पहले इंटीग्रेट करोगे, x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, y को इंटीग्रेट करोगे. तो इंटीग्रेशन के बाद ये टर्म फंक्शन में x भी होगा y भी होगा, y की जगह आप क्या रखोगे, phi x और psi x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट.
तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आफ्टर इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x के टर्म्स में। तो अब ये टोटल फंक्शन x का है, तो अब हम उसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसकी जो लिमिट होंगी वो x की कांस्टेंट लिमिट होंगी। तो ये ऑलवेज आपको ये अज्यूम मींस ये रिमेंबर, ये आपको याद रखना है कि जो भी इंटरनल लिमिट्स होंगी, यानी जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप पहले इंटीग्रेट कर रहे हो उसकी वेरिएबल लिमिट्स होंगी, और जो आउटर इंटीग्रेशन है यानी जो बाद में जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे उसकी कांस्टेंट लिमिट्स होंगी। तो इसी फिगर को आप दो तरीके से इंटीग्रेट, मतलब रीजन तो सेम है, आप चाहे पहले x के रिस्पेक्ट में करो या y के रिस्पेक्ट में, आपको इसी रीजन पर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो दो दो प्रोसीजर हो गए। केस वन क्या हो गया, अगर आप पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो पहले y की लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालिए और x की कांस्टेंट लिमिट निकालिए। अब इसी फिगर में अगर सपोज हमें पहले x के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले हम क्या करेंगे, तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, या इस पॉइंट से यहां तक, यही तो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले अगर आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इस कर्व से आप पहले x की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y, ऐसी मैक्सिमम वैल्यू x की यहां पर मिल रही है तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो ये होगी लोअर लिमिट ऑफ x, ये होगी अपर लिमिट ऑफ x। तो ये पहले आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, फिर आप इस फिगर में देख लोगे y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट। तो y मिनिमम वैल्यू यहां मिलेगी इस कर्व पर और मैक्सिमम वैल्यू यहां मिलेगी, तो ये जो भी वैल्यू है y इज इक्वल टू c, y इक्वल टू d, कांस्टेंट लिमिट, तो आपको कांस्टेंट रखना है। तो दो केस टू क्या हो गया कि पहले आपने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो x की वेरिएबल लिमिट हो गई इन टर्म्स ऑफ y, तो आफ्टर इंटीग्रेशन जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो टोटली फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, y में। तो अब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए और y की लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए। So there are two cases. In first case, we first integrate with respect to y. So we will take the variable limits of y in terms of x, and second we will integrate with respect to x in the constant limits. Similarly, the case 2, first we will integrate with respect to x, keeping the limits variable in terms of y, and then we will integrate with respect to y within constant limits. तो ये दोनों तरीके हैं, क्लियर। अब कभी किसी केस में हो सकता है, देखिए इस केस में हमें क्या था, अगर हम देखें x की लोअर लिमिट निकालें है तो पूरे रीजन पर यहां से यहां तक x की वैल्यू सेम एक कर्व देगा, जो भी ये रिलेशन होगा x, मतलब ये कर्व की जो इक्वेशन होगी उसमें हमें x की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली ऐसे ही यहां पर हमें आउटर मिल रही तो एक ही वैल्यू मिलेगी, पूरे कर्व पर एक ही फंक्शन काम कर रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें और सपोज मेरे को हमें क्या करना है, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है पहले, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या करोगे, पहले लोअर लिमिट पर लोअर लिमिट ऑफ y एंड अपर लिमिट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हम पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y की लिमिट्स जो क्या होंगी, वेरिएबल होंगी। तो अगर हम इस कर्व में देखें तो यहां से यहां ये लोअर लिमिट है, y की लोअर लिमिट यहां मिल रही है इस पूरे कर्व पर, लेकिन यहां से यहां तक का कुछ और पैटर्न है y का, और यहां से यहां तक कुछ और पैटर्न है। तो एक ही लिमिट तो हम केवल phi1 x से psi x नहीं रख सकते। देखिए अपर लिमिट सेम है, अपर लिमिट पूरे रीजन पर एक ही कर्व है, इसलिए पूरा एक ही लिमिट होगी। लेकिन अगर हम लोअर लिमिट देखें तो यहां से यहां तक अलग तरीके से y वेरी कर रहा है और यहां से यहां तक अलग तरीके से वेरी कर रहा है, तो हम एक लिमिट तो नहीं ले सकते। अगर हम phi1 से psi x तक लिमिट लेंगे तो हमें तो कर्व जो मिलेगा, जो रीजन जिस पर वो तो ये होगा, यहां से लेकर यहां तक, वो तो ये इंटीग्रेशन मिलेगा। या फिर अगर हम ये वाली लिमिट यूज करेंगे तो वो क्या होगा, इस टाइप से यहां से लेकर यहां तक, वो इस रीजन पर इंटीग्रेशन मिलेगा। लेकिन हमारा रीजन तो एक्चुअली ये है, ये वाला। तो आपको क्या करना है, देखिए अपर लिमिट क्योंकि सेम है पूरे कर्व पर, तो अपर लिमिट तो कॉमन हो गई, लेकिन लोअर लिमिट अगर आप देखोगे तो दो तरीके से वेरी कर रही है, एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल रीजन जो ये वाला था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक R1 एक R2, क्योंकि R1 में जो y की लोअर लिमिट है वो ये है और अपर लिमिट ये है, क्लियर। ये लोअर लिमिट हो गई R1 में और ये अपर लिमिट हो गई, यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे। सिमिलरली दूसरा रीजन R2 होगा, उसकी लोअर लिमिट जो होगी वो y की यहां से मिलेगी और अपर लिमिट यहां से मिलेगी, और दोनों इंटीग्रेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो टोटल इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक R1 प्लस
R2। अब R1 की लिमिट चेक कर लेते हैं और R2 की लिमिट चेक कर लेते हैं। तो ये कब होगा? जब पैटर्न चेंज हो रहा होगा। अभी इस रीजन में अगर हम देखें तो देखिए हमें क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना था, तो टोटल y की जो लोअर लिमिट है वो पूरे कर्व पर ये है, जिसका एक ही कर्व है, यानी उसकी एक ही इक्वेशन होगी। सिमिलरली अपर लिमिट पूरे कर्व पर ये है, पूरे पर एक ही इक्वेशन है, इसलिए अपर लिमिट भी कॉमन होगी, तो एक ही बार में इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन इस रीजन पर क्या था, अपर लिमिट तो कॉमन थी पूरे कर्व पर, एक ही कर्व था, लेकिन लोअर लिमिट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ y अलग इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, यहाँ y अलग इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमने टोटल इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब R1 से देख लेते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, R2 से देख लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। इसी तरह से अगर सपोज मोर देन 2 रीजंस बनते हैं, मतलब लिमिट्स दो तीन तरीके से वेरी कर रही हैं, तो उतने ही पार्ट्स में हम इंटीग्रेशन को डिवाइड कर देंगे। क्लियर? सो करना क्या है, आपको बस ये डिसाइड करना है कि पहले y के रिस्पेक्ट में करना है या पहले x के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर रीजन दिया है तो आपके पास चॉइस है, आप किसी के रिस्पेक्ट में भी पहले कर सकते हो। लेकिन सपोज रीजन नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट दिया है इस फॉर्म में इंटीग्रेशन कि ये y की लिमिट दी है, ये x इन टर्म्स ऑफ x लिमिट है, ये इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट लिमिट है। तो आपको फिर क्या करना है, फिर आपको उसी ऑर्डर में चेक करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। तो क्योंकि ये तो आपको ये याद रखना है, जो भी इंटरनल लिमिट्स होंगी वो वेरिएबल लिमिट्स होंगी। तो सपोज अगर हमें y इज इक्वल टू नहीं भी लिखा है, लेकिन लिखा है वन, मतलब वन फंक्शन ऑफ x अदर फंक्शन ऑफ x, दैट मींस ये जो लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये किसकी लिमिट्स होंगी, y की लिमिट्स होंगी, क्योंकि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x होगी, x की वैल्यू तो इन टर्म्स ऑफ x नहीं हो सकती ना। तो कई बार हमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें लिमिट्स दे देते हैं कि आप इंटीग्रेट कीजिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी लिमिट है। तो आपको चेक करना है, अगर वो x के टर्म्स में लिमिट है तो वो किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, और अगर वो y के टर्म्स में लिमिट है तो वो किसकी लिमिट है, x की लिमिट में, x की लिमिट्स है। क्लियर? तो हमें उसी ऑर्डर में इंटीग्रेट करना है। अगर ये y लिमिट्स है, मतलब इन टर्म्स ऑफ y है अगर लिमिट्स, तो आपको पहले x के, यानी वो x की लिमिट्स हैं तो x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर बाद में y के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही अगर वो x के टर्म्स में लिमिट है इंटरनल, तो पहले आप y के रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ x लिमिट है, इसलिए वो किसकी लिमिट होंगी, y की लिमिट होंगी। तो पहले y के रिस्पेक्ट में कीजिए, फिर x के रिस्पेक्ट में कीजिए। ठीक है ना? क्योंकि आप फाई और x से अगर साई x तक लिमिट जा रही है, यानी वो इन टर्म्स ऑफ x लिमिट है, तो वो x की लिमिट नहीं हो सकती है। x इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, दूसरे वेरिएबल को x के टर्म में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि पहले मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है या x के रिस्पेक्ट में करना है। जो भी पहले आप जिसके रिस्पेक्ट में करोगे उसकी वेरिएबल लिमिट होंगी और सेकंड वाले की कांस्टेंट लिमिट होगी। किसी भी ऑर्डर में आप करिए, आंसर सेम आएगा, चाहे आप ये फॉलो करिए चाहे ये रूल फॉलो करिए। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, इफ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट्स, अगर दोनों ही सपोज इंटीग्रेशन की लिमिट्स कांस्टेंट है, x की भी y की भी, फॉर एग्जांपल r इज अ रेक्टेंगुलर बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू d। अगर सपोज रीजन आपका ये होता है, ये वाला रेक्टेंगल है कोई, तो x की लोअर लिमिट पूरा कांस्टेंट है, x की अपर लिमिट वो भी पूरा कांस्टेंट है, सेम y की लोअर लिमिट कांस्टेंट है, y की अपर लिमिट कांस्टेंट है। तो जब चारों लिमिट कांस्टेंट होंगी तो आप किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। If R is a rectangle bounded by lines x is equal to a, b, y is equal to c to d, then order of integration is not important. आप जिस ऑर्डर में भी करोगे वो आपको सेम आंसर देगा। आप पहले x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो या y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, यू विल गेट दी सेम आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, तो समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू इवेल्युएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि उन्होंने किसी भी ऑर्डर में आपको अगर लिमिट्स दी हैं, हम उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर है कि कैसे ऑर्डर चेंज कर सकते हो। बट समटाइम्स क्या होता है, कुछ इंटीग्रेशन ऐसे हैं कि आप अगर सपोज पहले यहाँ x की लिमिट दी है x1 x2, और यहाँ दी है y1 y2, तो लेकिन जो फंक्शन है वो इस तरीके से है कि पहले आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो बहुत टफ होगा इंटीग्रेशन, लेकिन अगर उसका आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो हमारा इंटीग्रेशन रिलेटिवली इजी हो जाएगा। तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम ऑर्डर चेंज करेंगे। कि ऐसा ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि पहले आप ये वाली आउटर लिमिट है पहले अंदर लगा दो, फिर x1 x2 बाहर लगा दीजिए, ऐसा नहीं। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि कैसे ऑर्डर चेंज करना है। तो हम कई बार क्या होता है, इंटीग्रेशन
हम इजी करने के लिए कि इंटीग्रेशन उसका इजी हो जाए तो हम ऑर्डर भी चेंज करेंगे, वो आगे देखेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको 3 रूल्स फॉलो करने हैं। अगर चारों लिमिट्स कांस्टेंट हैं तो आप किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपको इस फॉर्म में दिया है तो यानी पहले आपको x के रिस्पेक्ट में करना है फिर y के रिस्पेक्ट में। अगर इस फॉर्म में दिया है तो पहले y के रिस्पेक्ट में करना है फिर x के रिस्पेक्ट में दिया है। और अगर रीजन दिया है, लिमिट्स नहीं दिए, तो रीजन से पहले आपको लिमिट्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, फिर आप इंटीग्रेशन करोगे। तो आप लिमिट्स कैसे भी निकाल सकते हो, x और y की लिमिट्स, मतलब आपके पास चॉइस है। मीन सपोज यही फिगर है, आपको अगर इंटीग्रेट करना है, आपको ये नहीं बोला जाता है किस ऑर्डर में करना है, केवल दिया है यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन ओवर दिस रीजन। तो अब आपके पास चॉइस है, आप y की वेरिएबल लिमिट्स ले लिए या x की वेरिएबल लिमिट्स ले लिए। तो आपको करना क्या है, अगर आपको सपोज y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है तो आप y के पैरेलल एक स्ट्रिप ऐसे बनाएंगे। फिर क्या करोगे, इस स्ट्रिप पर लोअर पर देख लीजिए, पहले तो ये देखना है पूरे रीजन में y एक ही तरीके से वेरी कर रहा है। देखिए लोअर लिमिट आप यहाँ पर स्ट्रिप बनाएंगे तो भी वैल्यू लोअर लिमिट से यही आएगी, यहाँ बनाएंगे स्ट्रिप तो भी लोअर वैल्यू आपकी इसी कर्व से मिलेगी, आप यहाँ स्ट्रिप बनाएंगे तो भी y की लोअर लिमिट इसी कर्व से मिलेगी। ऐसे ही अपर लिमिट, चाहे आप ये स्ट्रिप बनाए, चाहे ये स्ट्रिप बनाए, चाहे ये स्ट्रिप बनाए, चाहे ये स्ट्रिप बनाए, पूरा अपर लिमिट के लिए जो कर्व है वो कॉमन है। तो आपको क्या करना है, मतलब एक ही रीजन बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करें, दूसरा क्वेश्चन, तो आप स्ट्रिप अगर यहाँ बनाएंगे तो लोअर लिमिट इस कर्व से मिलेगी, और अगर आप स्ट्रिप यहाँ बनाएंगे तो लोअर लिमिट आपको इस कर्व से मिलेगी। कर्व चेंज हो रहा है, और जब कर्व चेंज हो रहा है तो हमें उतने पार्ट्स में उसे डिवाइड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ स्ट्रिप बनेगी तो लोअर लिमिट यहाँ से मिल जाएगी, अपर लिमिट यहाँ से मिलेगी। ऐसे ही इस वाली स्ट्रिप की लोअर लिमिट यहाँ से मिलेगी, अपर लिमिट यहाँ से मिलेगी। तो हमें 2 पार्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर आप x के रिस्पेक्ट में करें इसी क्वेश्चन को, तो पहले आप क्या करोगे, ये आपने स्टेप बनाई, पहले तो रीजन डिसाइड करोगे, सिंगल रीजन में इंटीग्रेट करना है या डबल में। तो अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट कॉमन मिल रही है पूरे रीजन में तो एक ही बार में इंटीग्रेट होगा। अगर इस तरीके से 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसकी लिमिट्स चेंज हो रही हैं, लोअर कर्व या अपर कर्व चेंज हो रहा है, तो आपको उतने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, पहले तो आपने रीजन डिसाइड कर लिया, सिंगल बनेगा या डबल या ट्रिपल। उसके बाद लिमिट्स अब कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपने ये स्ट्रिप बनाई, फिर देखा इस यहाँ पर लोअर लिमिट y की क्या है, तो आपको y इज इक्वल टू 5x कुछ टाइप का मिलेगा, क्योंकि ये कर्व क्या है, वेरी कर रहा है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। तो वो आपको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम अपर लिमिट में भी y की वैल्यू कुछ मिलेगी इन टर्म्स ऑफ x, वो होगी y की लिमिट। तो पहले उसको में y की लिमिट्स लगाइए, इंटीग्रेट करिए। अब पूरा फंक्शन x में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि y इंटीग्रेशन के बाद क्या करोगे, उसकी लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x है, तो पूरा का पूरा फंक्शन x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कर्व में देख लीजिए कि x की लोअर लिमिट क्या है और x की अपर लिमिट क्या है, कांस्टेंट लिमिट। तो यहाँ मिनिमम इस पूरे रीजन में मिनिमम x यहाँ पर है, यानी इस पॉइंट पर, और मैक्सिमम यहाँ तक गया यानी इस पॉइंट पर। तो x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, इस पर फिर आपको इंटीग्रेट करना है। ऐसे ही अगर आपको पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो पहले आप x के पैरेलल एक स्ट्रिप बनाएंगे। तो इसमें भी देखिए, आप चाहे यहाँ स्ट्रिप बनाए, चाहे यहाँ स्ट्रिप बनाए, चाहे यहाँ स्ट्रिप बनाए, लोअर लिमिट सेम हो रही है, अपर लिमिट सेम हो रही है, यानी सिंगल कर्व बनेगा, सिंगल रीजन होगा। आप कैसे करना है, इसकी पहले लोअर लिमिट निकालिए x की, तो इस कर्व से आप फॉलो करिए। ये कर्व जो ये जो इक्वेशन, ये कर्व जो है वो किस इक्वेशन से बन रहा है, तो x इज इक्वल टू जी वाई लोअर लिमिट हो गई सेम, ये अपर लिमिट हमें इस कर्व पर मिल रही है तो x इज इक्वल टू एच वाई अपर लिमिट हो गई। इंटीग्रेट करिए, टोटली फंक्शन आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में। और y की आप देख लीजिए, लो इस पूरे रीजन में y मिनिमम यहाँ है इस पॉइंट पर, यानी यहाँ पर कहीं होगा y इज इक्वल टू सी, और मैक्सिमम यहाँ तक गया है, तो y इज इक्वल टू डी, ये आपकी कांस्टेंट लिमिट। फिर आपको उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। तो पहले रीजन बनाइए, रीजन से लिमिट्स कैलकुलेट कीजिए, फिर इंटीग्रेट कीजिए, यही आपको करना है। क्लियर? कुछ एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशंस, डबल इंटीग्रेशंस के एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ-कहाँ यूज होते हैं। सो अगर जो इंटीग्रांड मींस द फंक्शन व्हिच वी हैव टू इंटीग्रेट इज 1, मींस डबल इंटीग्रेशन इस टाइप से है, डबल इंटीग्रेशन dx dy, मींस जो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है वो 1 है, देन this integration will give you the area of the region R। मतलब अगर हम ये बोलें कि हमारे पास सपोज ये कर्व है, तो अगर हमें फंक्शन सपोज दिया होता कि वो फंक्शन 1 है और इसको डबल इंटीग्रेट करिए, ऐसा क्वेश्चन दिया है R और dx dy, क्लियर? तो
दिस इंटीग्रेशन मीन्स ये जो रीजन है, आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे, लिमिट फाइंड आउट करने का, तो फंक्शन तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट हो जाएगा। जब आपकी लिमिट्स निकाल के उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इस रीजन का एरिया आपको दे देगा। क्लियर? जो भी ये रीजन है उसका वो आपको एरिया प्रोवाइड कर देगा, अगर फंक्शन की वैल्यू 1 है, इंटीग्रांड 1 है। So if the function means the integrand is 1, then this double integration will give you the area of region R. For example, इन्होंने लिखा है if R is the rectangle bounded by the lines, वही मैंने आपको कर्व बताया था, अगर ये रीजन है और फंक्शन वैल्यू 1 है, तो आपको जो इंटीग्रेशन करोगे, यानी ये हो गई एक x की लिमिट, ये हो गई y की लिमिट, और क्योंकि कांस्टेंट लिमिट है तो किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो। तो आपने इंटीग्रेट किया, कैलकुलेट किया, तो ये आ गया, तो ये जो वैल्यू आएगी आंसर मींस इंटीग्रेशन की वैल्यू, वो आपको क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया आपको मिलेगा। क्लियर? अब सपोज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड इज अ सरफेस, मींस जो हमें जिसको इंटीग्रेट करना है जेड और फंक्शन ऑफ एक्स वाई मींस जनरल, अगर ये 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा, डबल इंटीग्रेशन, दिस विल गिव यू द वॉल्यूम of region bounded by surface z is equal to xy above the xy plane. क्लियर? जैसे एग्जांपल दिया है कि z की वैल्यू, मतलब फंक्शन आपका ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अगर आप ये देखें तो ये क्या है, एक सर्कल है, तो z की वैल्यू है, यानी आप इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये स्फीयर मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड रीजन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये आपका फंक्शन की वैल्यू हो गई, और ये एक्स dx dy हो गया। तो दिस विल गिव यू, क्योंकि ये एक फंक्शन है और एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये आपको देगा वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हेमीस्फीयर क्यों, क्योंकि क्या है, अबव द एक्स वाई प्लेन, यानी हाफ पार्ट, 3D में फिगर जरूर है, पर वो जो ऊपर वाला स्फीयर का पार्ट होगा उसका वो वॉल्यूम दे देगा। क्लियर? सो ऐसी और एप्लीकेशंस भी हैं, अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई कोई डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास पर यूनिट एरिया, तो जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल मास ऑफ रीजन आर। सिमिलरली अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज अ डेंसिटी फंक्शन, तो जो एक्स बार और वाई बार, ये जो इंटीग्रेशन है एक्स इंटू फंक्शन वाई इंटू फंक्शन, ये आपको कोऑर्डिनेट्स देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऑफ द मास एम इन आर। क्लियर? सो ऐसी और भी एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस कैसे करना है। इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन दिस where r is region bounded by x axis line y is equal to 2x and parabola y is equal to x square by 4a। तो पहले तो सबसे पहले आपको, क्योंकि रीजन दिया है तो पहले रीजन ड्रॉ करना पड़ेगा, लिमिट्स डायरेक्ट नहीं दिए हैं आपको, रीजन से लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, तो पहले रीजन ड्रॉ करिए। तो रीजन क्या है, एक्स एक्सिस, मतलब रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस लाइन y is equal to 2x, तो मैं यही सपोज बनाता हूं, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस यानी ये वाली लाइन, y इज इक्वल टू 2x, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 2x, 0 0 से पास होगी, जब y को 0 रखोगे तो x 0 आएगा, x को 0 रखोगे तो y 0 आएगा, यानी ये लाइन इस टाइप से होगी, y इज इक्वल टू 2x। तो अभी तो हमें दो लाइन मिली है, x एक्सिस यानी ये वाली लाइन, और y इज इक्वल टू 2x ये वाली लाइन, एंड द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4a। तो अगर आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्लियर? यानी x को नेगेटिव रखोगे तो भी y की वैल्यू सेम आएगी, x को पॉजिटिव रखोगे तो भी y की वैल्यू सेम आएगी, यानी x नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों केस में हमें y की सेम वैल्यू मिलेगी। तो ये कौन सा पैराबोला होगा, यही होगा ना, ये वाला। तो ये थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ नहीं हुआ है, तो मींस ये वाला कर्व हमारे पास ये मिलेगा, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, यानी क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये वाला जो पैराबोला होता है, ये वाला कौन सा होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और अगर हम इसी को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
4ay, तो ये वाला वो है, क्लियर। तो आपके पास एक्स एक्सिस पैराबोला, ये ओरिजिन से टच होगा, एक्स एक्सिस इस तरह से ये पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, और एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x, वो ये होगी लाइन। तो इनसे बाउंडेड रीजन जो है वो हमारा रीजन है, यानी रीजन तीनों जो हमें कर्व दिए हैं उनसे बाउंडेड रीजन कौन सा बन रहा है, यही तो है, एक्स एक्सिस पैराबोला और y इज इक्वल टू 2x, यानी ये वाला रीजन हो गया बाउंडेड रीजन, तो यही है। अगर आप इसके नीचे लेंगे तो वो बाउंडेड कहाँ होगा, तो बाउंडेड रीजन क्या हो गया, ये वाला। अब देखिए यहाँ फिगर जो बने हुए हैं, देखिए तो रीजन ये बने हुए हैं कि y इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 2x लाइन, ये वाली लाइन होगी, और एंड पैराबोला, सो दिस इज पैराबोला, क्या बनेगा, ये बनेगा। तो बाउंडेड लाइन जो होगी वो केवल ये बाउंडेड रीजन हो गया, ये वाला, बाकी ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो जो बाउंडेड रीजन हो गया वो केवल क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, क्लियर। तो पहले तो आपको रीजन बनाना आना चाहिए, तो रीजन आपने बनाया है एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू एक्स लाइन और कर्व पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, ये वाला। तो जो बाउंडेड पार्ट हो गया वो केवल ये वाला पार्ट होगा। अब देखिए, तो पहले आपने रीजन बनाया, यानी रीजन ये आ गया, ये वाला पार्ट, इस पर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। फंक्शन क्या है, x इंटू वाई, ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू हो गई, क्लियर। अब हमें लिमिट्स निकालना है, तो लिमिट्स निकालने के लिए आपको मैंने बताया था, अब आपके पास क्योंकि रीजन दिया है तो चॉइस है, या तो आप पहले y के रिस्पेक्ट में करिए या पहले x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। तो अगर हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं पहले इंटीग्रेशन, तो हमें क्या करना है, y के पैरेलल एक स्टेप बनानी है इस पूरे कर्व पर। पूरे कर्व पर देखोगे तो लोअर लिमिट सेम है, यहां से यहां तक y एक ही तरीके से वेरी कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अपर लिमिट में भी y एक ही तरीके से वेरी कर रहा है, कोई एक ही रीजन बनेगा, तो यानी रीजन एक ही होगा। अब उस रीजन में देखिए हमने y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हमें पहले इंटीग्रेट करना है, तो हमने y एक स्ट्रिप बनाया पैरेलल टू y एक्सिस इस कर्व में, इस बाउंडेड रीजन में, फिर लोअर लिमिट निकाली। तो लोअर लिमिट हमें कहां से मिलेगी, इस कर्व से, इस पूरी स्ट्रिप, अगर आप यहां पर भी बनाओगे स्ट्रिप, तो लोअर लिमिट क्या है, इस पैराबोला से ही मिलेगी। तो पैराबोला पर y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4a, यानी ये होगी लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट पूरे लाइन पर आप स्ट्रिप यहां बनाए चाहे यहां बनाए, सब पर लो अपर लिमिट कहां से मिलेगी, इस लाइन पर। तो इस लाइन पर इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x, तो y की लोअर लिमिट होगी एक्स स्क्वायर बाय 4a और से लेकर 2x तक। तो ये होगी वेरिएबल लिमिट ऑफ y, यानी पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अब x की लिमिट देख लेते हैं, इस पूरे रीजन में x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो पूरे रीजन में x की मिनिमम वैल्यू ये है 0, क्योंकि यहां तो जा नहीं रहा है कर्व, तो यानी मिनिमम यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से, ओरिजिन से, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है 0, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, इस पॉइंट तक, यानी इस पॉइंट तक। तो x वेरी कर रहा है 0 से लेकर इस पॉइंट तक। अब ये पॉइंट हमें निकालना है कि x की ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो कैसे मिलेगी, आप दो, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट तक जा रहा है x, तो आप यहां पर देख लीजिए x कहां से, तो ये इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, दूसरा है y इज इक्वल टू 2x, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी सेटिस्फाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू 2x से आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो जैसे ही y इज इक्वल टू 2x आप यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, तो एक x कैंसिल हो गया स्क्वायर से, और ये बना x इज इक्वल टू 8a। तो x की वैल्यू आ गई 8a, यानी इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी 8a, और 8a है तो y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू 2x है इस पॉइंट पर, तो 2x में x की वैल्यू रखिए 8a, तो 2 इंटू 8a यानी 16a, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 16a। हालांकि हमें y की लिमिट से मतलब नहीं है, क्योंकि y की तो हमें वेरिएबल लिमिट लेनी है, बट फिर भी ये पॉइंट क्या बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट 8a 6a। अब देखिए, तो आपको क्या मिला, लोअर लिमिट मिला, अपर लिमिट मिला, तो y के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए y के रिस्पेक्ट में y के पैरेलल हमने एक स्ट्रिप बनाई, लोअर लिमिट निकाली, अपर लिमिट निकाली। यहाँ पर हमने पूरे बाउंडेड रीजन में चेक कर लिया कि x की वैल्यू मिनिमम 0 है, मैक्सिमम क्या है 8a। तो इंटीग्रेशन कैसे करना है, पहले आपने y के रिस्पेक्ट में स्ट्रिप बनाई, यानी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो y की लोअर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4a,
और अपर लिमिट क्या है 2x से 2x x इंटू वाई इंटू पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा dy यानी y के रिस्पेक्ट में। फिर जो भी इंटीग्रेशन आएगा फिर x की कांस्टेंट लिमिट, तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 to 8a और अब x के रिस्पेक्ट में होगा। तो आपको क्या करना है सिंपली पहले इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में करो तो क्या आ जाएगा, x को कांस्टेंट रखना है तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा y स्क्वायर बाय 2 और x कांस्टेंट मींस मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज, फिर लिमिट्स रख दीजिए y की x स्क्वायर बाय 4a टू 2x, तो ये होगी अपर लिमिट। लिमिट कैसे रखते हैं, x बाय 2 तो कांस्टेंट हो गया, हमें y की जगह लिमिट रखना है तो y स्क्वायर है यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर दीजिए पहले तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इन्होंने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया है बट कैसे भी कर सकते हैं। तो x इंटू 2 का मल्टीप्लाई करिए तो ये पहली टर्म क्या आ जाएगी 2x क्यूब और दूसरी आ जाएगी x टू द पावर 5 बाय 32a स्क्वायर। क्लियर, तो x क्यूब 2x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x क्यूब मींस 2x टू द पावर 4 बाय 4, सो 4 बाय 2 से वो क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फंक्शन क्या बना, ये बना 2x क्यूब। तो 2x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x टू द पावर 4 बाय 4, तो वो क्या हो जाएगा सॉल्व होके x टू द पावर 4 बाय 2। सिमिलरली ये बनेगा x टू द पावर 5 बाय 32a स्क्वायर, सो x टू द पावर 6 बाय 32 इंटू 6 इंटू a स्क्वायर, तो सही आ गया। अब x की लिमिट रख दिए 88 टू 8a, तो x की लिमिट रख दीजिए सॉल्व कर दीजिए, तो एक तरीका ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अगर करना है तो रीजन तो यही है, यही वाला रीजन है। अब मुझे अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले x के पैरेलल एक स्टेप बनाइए इस पूरे कर्व पर। तो x के पैरेलल बनाया तो देखिए x में भी आप देख लेते हैं, अगर स्टेप यहां बनाएंगे तो लोअर लिमिट यहां से मिल रही है, अपर लिमिट यहां से मिल रही है, यहाँ स्टेप बनाएंगे तो भी लोअर लिमिट यहां से मिल रही है उसी लाइन से, अपर लिमिट यहां से मिल रही है, यहाँ स्टेप बनाएंगे तो भी लोअर लिमिट यहां से मिल रही है, अपर लिमिट यहां से मिल रही है, यानी पूरे रीजन में x एक ही तरीके से वेरी कर रहा है, लोअर पर भी एक ही इक्वेशन वेरी कर रही है और अपर पर ये वाला पैराबोला काम कर रहा है, यानी अभी भी रीजन एक ही है x के रिस्पेक्ट में भी। तो यानी एक ही बार में हमें इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, रीजन कॉमन बनेगा। अब हमने x के पहले x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है तो x की वेरिएबल लिमिट चेक कर लीजिए। तो इस लोअर लिमिट यहां से ये x कैसे वेरी कर रहा है, यहां से लेकर ऐसे करेगा ना वेरी, लोअर लिमिट मींस मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। तो x की मिनिमम वैल्यू इस पूरे कर्व में क्या है यहां से, यानी इस कर्व से, और ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या थी y इज इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x से x की वैल्यू क्या हो जाएगी y बाय 2, तो ये होगी लोअर लिमिट। और मैक्सिमम वैल्यू कहां जा रही है, इस कर्व पर जा रही है, और वो कर्व क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, तो इससे फिर से x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी y 4a इंटू वाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 4a y। क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए वो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज क्योंकि वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y। तो जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4a y मिलेगा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए वो वैल्यू क्या होगी प्लस, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4a y, ये होगी अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट हो गई x इज इक्वल टू वाई बाई 2, अपर लिमिट हो गई x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4a बाय। अब इसमें देख लेते हैं y कितना वेरी कर रहा है, अपर फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। तो इस पूरे रीजन में देख लेते हैं y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो y देखिए y इस तरह से वेरी करता है, तो y की मिनिमम वैल्यू यहां से स्टार्ट हो रही है यानी 0 से, और मैक्स फिर बढ़ते बढ़ते आपका यहाँ कहां तक जा रहा है, ये इस पॉइंट तक जा रहा है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें y की लिमिट y की वैल्यू क्या है 16a। सो 0 से लेकर इस पॉइंट तक, ये पॉइंट क्या है 16a। तो दूसरे केस में हमने क्या किया, पहले इसी इंटीग्रेशन को पहले x की लिमिट लगाई y बाई 2 टू स्क्वायर रूट 4a बाय, इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 y। फिर हमने जो भी फंक्शन आया उसमें लिमिट्स ऑपरेट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह सब्स्टिट्यूट की, ये फंक्शन आया। फिर x ये होगी y की लिमिट 0 टू 16a, फिर हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया इसी फंक्शन को, ये इंटीग्रेशन आया, फिर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमें ये आंसर मिला। तो दोनों केसेस से देखिए हमें आंसर सेम मिल रहा है। क्लियर, तो आंसर वेरी नहीं करेगा, चाहे आप पहले x के रिस्पेक्ट में करिए चाहे y के रिस्पेक्ट में करिए, बस लिमिट्स आपको ध्यान रखने की, लिमिट्स क्या यूज करनी है। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आपको पहले करना है वो वेरिएबल लिमिट निकालनी है, तो स्ट्रिप बनाइए, स्ट्रिप की लोअर लिमिट मैक्सिमम लिमिट चेक करिए। सिमिलरली अगर यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में पहले करना है तो x की लोअर लिमिट वेरिएबल टर्म, x की अपर लिमिट,
और उस पूरे रीजन में फिर अदर वेरिएबल की कांस्टेंट लिमिट। क्लियर? तो हमने इक्वेशन किया, दोनों तरीके से किया, देखिए आंसर सेम आ रहा है, तो आप किसी भी वे में यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, अब आपको कुछ नहीं, बस आपको रीजन बनाने आने चाहिए कि रीजन कैसे बनेगा। नाउ इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, फंक्शन क्या है e टू द पावर x स्क्वायर और x और y के रिस्पेक्ट में करना है। रीजन क्या है? रीजन इज गिवन बाय दिस 2y लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 एंड y वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। तो इसको आप अगर देखिए तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है इस रीजन में? 2y से 2, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2y, तो x इज इक्वल टू 2y मिनिमम, तो x इज इक्वल टू 2y, तो ये लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि 0 0 से पास हो रही है, यानी लाइन क्या होगी? अगर मैं कर्व बनाऊं तो ये लाइन जो होगी जो ओरिजिन से पास होगी वो क्या होगी? x इज इक्वल टू 2y, तो x की लोअर लिमिट क्या है? 2y, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2y लाइन। नेक्स्ट x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2, तो 2 मींस देखिए ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट होगा, ये 2 पॉइंट होगा, यानी x इज इक्वल टू 2 ये पॉइंट हो गया। तो पहली लाइन होगी x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2y और से लेकर x इज इक्वल टू 2 यानी ये वाली लाइन तक, तो x इज इक्वल टू 2 तक, यानी इस लाइन से इस लाइन तक। अब y की लिमिट है 0 से 1, तो y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? ये x एक्सिस, क्लियर? यही ना, x एक्सिस क्या है? y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा, तो y इज इक्वल टू 1 से आपको एक लाइन बनानी है, तो वो आपको ये चेक करना है कि वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा या वो y इज इक्वल टू 1 यहाँ होगा या y इज इक्वल टू 1 यहाँ होगा, तो वो हमें चेक करना है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, जैसे ये x इज इक्वल टू 2y लाइन हो गई, ये x इज इक्वल टू 2 लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 0 ये लाइन हो गई, और y इज इक्वल टू 1 अब कहाँ आ रही है वो आपको चेक करना है, तो y इज इक्वल टू 1 आपको चेक करना है इस लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर? आपके पास फिगर कितना है? एक तो x इज इक्वल टू 2y लाइन है और x इज इक्वल टू 2 लाइन है। क्लियर? तो अब आपको y इज इक्वल टू 1 बनाना है, तो y इज इक्वल टू 1 कहाँ बनाना है? जो इस लाइन को कहाँ यहाँ कर रही है इंटरसेक्ट, यहाँ कर रही है, कहाँ कर रही है, तो उस पर आप सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ रखिए, तो y इज इक्वल टू 1 अगर रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिल रही है? 2, तो यानी x इज इक्वल टू 2 ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर ही y की वैल्यू 1 है। क्लियर? तो आपका बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ? इस लाइन x के इस लाइन से इस लाइन तक, ये वाली लाइन तक, और y की ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू से x इज इक्वल टू 1 तक। तो जो बाउंडेड रीजन बनेगा वो क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू 1 सॉरी y इज इक्वल टू 1 ये लाइन होगी, तो बाउंडेड रीजन केवल ये वाला बनेगा। तो वही इसमें फिगर बनाया है, देखिए x इज इक्वल टू 2y से लेकर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 से लेकर y इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट तक। तो बाउंडेड रीजन क्या बना? ये, इस पर आपको इंटीग्रेट करना है। अब अगेन चॉइस है, या तो आप पहले x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। तो जैसे ये मैंने लाइन बनाई है, या तो ये लाइन बनेगी या ये लाइन बनेगी। अगर आपको y के रिस्पेक्ट में करना है तो y के पैरेलल एक लाइन खींचिए, स्ट्रिप बनाइए, और पूरे रीजन पर देखिए y की सेम लिमिट्स है, लोअर लिमिट पूरा एक ही है, अपर लिमिट पूरा ये लाइन है, ये वाली, तो एक ही रीजन बनेगा, दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? अब बस आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालना है। तो इस पूरी लाइन पर y की लोअर लिमिट क्या है? y इज इक्वल टू 0, और अपर लिमिट पूरी लाइन यहां से मिलेगा, तो ये लाइन कौन सी? x इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू क्या होगी? x बाय 2, तो y इज इक्वल टू 0 से लेकर y कहां तक वेरी कर रहा है? x बाय 2, ये हो गई y की लिमिट्स। अब इस पूरे रीजन में x की लिमिट्स देख लीजिए, तो x मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? यहां तक, तो यहां पर वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 2, तो 0 से 2 आपका क्या होगी? x की लिमिट हो गई, तो वही इंटीग्रेट किया है इन्होंने। तो y की लिमिट 0 से x बाई 2 और x की लिमिट 0 से 2, e टू द पावर एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे क्योंकि हमने y के पैरेलल आपकी स्ट्रिप बनाई है। तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो एज इट इज हो गया, और dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया? y। अब लिमिट्स रखिए, तो फंक्शन ये बन गया। अब x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में कैसे होगा? एक्स स्क्वायर को t ले लीजिए, तो 2x dx dt में चला जाएगा, तो आपका ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर? फिर x की लिमिट ऑपरेट कर दी, ये आपका आंसर आएगा। आप रिवर्स वे में भी कर सकते हो, आप पहले क्या करोगे? अगर x के रिस्पेक्ट में पहले करना है तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट,
तो x की लोअर लिमिट क्या होगी 2y से लेकर 2 तक अपर लिमिट, और y देख ली कितना वेरी कर रहा है, तो y 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है। तो इससे भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, x की लिमिट हो जाएंगी 2y से 2 और y की लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 1 आप e टू द पावर एक्स स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पहले आपको इसके आप पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर को आपको x के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो वो इंटीग्रेशन रिलेटिवली टफ होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, पहले y के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो देखिए कितना इजी इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि e टू द पावर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू y। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया y, फिर y की जगह हमने जब लिमिट रखी तो x इंटू e टू द पावर एक्स। अब ये इस फंक्शन को आपको मालूम है कैसे इंटीग्रेट करना है, आप एक्स स्क्वायर को t ले लीजिए, ठीक है। तो 2x dx dt के इक्वल हो गया। तो x dx किस में चला गया, dt बाई 2 में। तो x dx dt बाई 2 में, तो केवल इंटीग्रेशन क्या बचा, e टू द पावर t। तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर t, और 1/2 चल ही रहा है, क्लियर। तो बस ये आपका बहुत इजी सा इंटीग्रेशन बन जाएगा अगर आप पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप पहले x की वेरिएबल लिमिट लोगे, तो यानी x की पहले आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करोगे, ये क्वेश्चन है, क्लियर। तो ये मैं जो आपको बोल रहा था, कई बार ऑर्डर चेंज करने से हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो इस केस में हमने पहले y के रिस्पेक्ट में किया तो हमारा बहुत इजी इंटीग्रेशन बना, लेकिन अगर हम पहले x के रिस्पेक्ट में करते इंटीग्रेशन तो हमारा इंटीग्रेशन टफ होता। So this is one of the applications of the double integration कि ऑर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें रीजन नहीं दिया है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन यूजिंग दिस लिमिट, तो लिमिट दी है तो आप क्या करिए, तो मैंने आपको बोला था कि ये जो लिमिट है वो देखिए ये 0 तो कांस्टेंट है, बट y स्क्वायर बाई 2 क्या है, वेरिएबल लिमिट है। और अगर लिमिट्स y के टर्म्स में है तो ये किसकी लिमिट होगी, x की लिमिट होगी। तो पहले आपको x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर y के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अगर इंटीग्रेशन इजी है तो आप डायरेक्ट करिए, अगर इंटीग्रेशन इजी नहीं है तो पहले आप इसका रीजन बनाइए और रीजन से फिर इसकी लिमिट चेंज करिए। x को y में, मतलब पहले आप x की y की लिमिट निकालिए फिर x की लिमिट निकालिए, वो भी कर सकते हैं। तो देखिए ये फिगर बन रहा है, ये वाला सेकेंड वाला। तो मैंने आपको बताया था क्योंकि फर्स्ट लिमिट जो है वो वेरिएबल लिमिट है, तो 0 तो कांस्टेंट है, वो किसी की भी लिमिट हो सकती है, x की भी हो सकती है, y की भी। लेकिन अपर लिमिट क्योंकि y के टर्म्स में है, तो y के टर्म्स में दैट मींस ये लिमिट किसकी है, x की लिमिट है। तो यानी x 0 से लेकर y स्क्वायर बाई 2 तक वेरी कर रहा है। सो x इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होगी, ये वाली, x इज इक्वल टू 0। दूसरा कौन सा है, अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2। तो y स्क्वायर यानी y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2x, तो y स्क्वायर 2x क्या होगा, एक पैराबोला होगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो गया पैराबोला, ये वाला। फिर और x की वैल्यू 0 से लेकर, सॉरी y की वैल्यू 0, ये x की अगर लिमिट है तो ये वाली किसकी होंगी, y की लिमिट होंगी। तो y 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा है, तो y 0 से लेकर 2 यानी y की लोअर लिमिट हो गई 0 और y की अपर लिमिट क्या होगी 2, y इज इक्वल टू 2। तो आप देख लीजिए बाउंडेड रीजन कौन सा बन रहा है। तो चारों लाइन से बाउंडेड क्या हो रहा है, देखिए x इज इक्वल टू 0 से इस कर्व तक, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x तक, और y इज इक्वल टू 0 से 2 तक। तो बाउंडेड रीजन क्या बना, ये बना ना केवल, ये आपका रीजन हो गया। तो आप देख लीजिए आपको कैसे इंटीग्रेट करना है, क्लियर। तो क्योंकि पहले इन्होंने जो दिया है वो तो आपने क्या किया है, इन्होंने x की लिमिट दी है, तो पहले आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके पूरा फंक्शन y का बनेगा, फिर आपको y के रिस्पेक्ट में करना है, क्लियर। तो वही किया है कि इन्होंने लिमिट चेंज करी है, बिकॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ द इंटीग्रांड इट वुड बी इजियर टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट। क्योंकि इंटीग्रांड फंक्शन ऐसा है, आप क्या करोगे, इस पूरे फंक्शन को अगर t ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2y डिवाइड किस में चला जाएगा, dt में। तो ये इंटीग्रेशन इजी होगा। अदरवाइज क्या होगा, अभी देखिए एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करो, अगर x के रिस्पेक्ट में पहले करोगे तो y तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन बहुत टफ होगा। तो अगर आप इस, क्योंकि ये y के टर्म्स में लिमिट है यानी x की लिमिट है, तो अगर आप पहले x के रिस्पेक्ट में करोगे सो इट इज वेरी टफ टू इंटीग्रेट। बट अगर आप इसमें इसको पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे तो इंटीग्रेशन इजी होगा। तो वही उन्होंने बताया है कि आपने कर्व बनाया, अब आप क्या करोगे,
इस बाउंडेड रीजन, जो भी रीजन बन रहा है, यानी ये वाले रीजन में आप क्या करोगे, y के रिस्पेक्ट में पहले आप करोगे, क्योंकि आप फंक्शन को देख सकते हो ना, अगर आप पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे तो इंटीग्रेशन इजी होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x तो कांस्टेंट है, यानी फंक्शन क्या बना, इस पूरे को t ले लेंगे आप, तो 2y dy dt में चला जाएगा, 2y dy किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा, तो y dy वो किस में चला गया, dt by 2 में, तो केवल क्या बचा, 1 ओवर स्क्वायर रूट t dt। सो आपको t टू द पावर -1 by 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो वो बहुत इजी होगा, इसलिए हमें पहले y की लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो रीजन बन गया। अब y के रिस्पेक्ट में अगर पहले करना है तो y के पैरेलल आपने स्ट्रिप बनाई, तो देखिए पूरे कर्व में हमें एक ही रीजन मिलेगा, क्यों, आप स्ट्रिप चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से करें, सब में लोअर लिमिट यही मिल रही है और सबकी अपर लिमिट ये मिल रही है, यानी पूरा रीजन एक ही जैसा है, वेरिएशन नहीं है, तो एक ही रीजन बनेगा। तो आपने क्या किया, एक स्ट्रिप बनाया, लोअर लिमिट क्या है y की, तो y की लोअर लिमिट इस कर्व पर मिल रही है, यानी पैराबोला पर, वो पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2x, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2x। अपर लिमिट कहाँ जा रही है, यहाँ पर, यानी y इज इक्वल टू 2, तो y की लिमिट हो गई स्क्वायर रूट 2x टू 2, और आप देख लीजिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 0, और मैक्सिमम यहाँ तक गया है इस रीजन में x यहाँ तक, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए ये x की वैल्यू क्या है, तो ये देखिए ये दोनों तो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू इस कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कट करें, यानी यहाँ पर दोनों सेटिस्फाई करेंगे दोनों कर्व, तो y इज इक्वल टू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 यानी 4, तो y स्क्वायर अगर 4 है तो y या तो -2 होगा या +2, लेकिन -2 हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, इसलिए क्या होगा, +2। तो अगर y प्लस सॉरी एक y की जगह 2 रखना है आपको, तो क्योंकि y इज इक्वल टू 2 इससे सेटिस्फाई कर रहा है, तो y इज इक्वल टू 2 यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो 4 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 2। सो ये पॉइंट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर 2, ये होगी x की लिमिट, x इज इक्वल टू 0 टू 2। अब आपको इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। अब आप पहले y के रिस्पेक्ट में इसीलिए इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, क्या होगा, इसको आप t ले लीजिए, तो y dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt बाई 2, तो ये फंक्शन बनेगा dt बाई 2 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट टी, 1 बाय स्क्वायर रूट टी क्या बनेगा, t टू द पावर माइनस हाफ, तो t टू द पावर माइनस हाफ इंटू dt बाई 2, ये बनेगा। तो केवल आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो t टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, और ये डिवाइडेड बाय 2 चल ही रहा है, क्लियर, क्लियर। सो टी टू द पावर हाफ यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और हाफ से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा। y की लिमिट रखिए, तो y की जगह ये लिमिट रख के हमें ये आंसर मिला है, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, तो फिर x की लिमिट रखिए, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ये वही थ्योरी मैंने दूसरी बुक से लिया है, तो उसमें भी यही थ्योरी है कि पहले अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो आप ये स्टेप बनाएंगे, x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये स्टेप बनाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे वो वेरिएबल लिमिट देगा आपको, और फिर वहां में उस रीजन में x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है वो कांस्टेंट लिमिट, इस रीजन में y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है वो कांस्टेंट लिमिट। रेक्टेंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इस स्ट्रिप्स को y पर वेरी कराओ या इस स्ट्रिप को x पर यहां से लेकर यहां तक ले जाओ, दोनों से सेम मिलेगा। तो जब कांस्टेंट लिमिट है तो आप किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेट कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, सेम वही है, देखिए इसमें कोई रीजन नहीं दिया पर आप रीजन ड्रॉ कर सकते हो। ये लिमिट क्या है, 0 से एक्स स्क्वायर, तो लिमिट्स क्या है इन टर्म्स ऑफ x है, यानी y की लिमिट है, तो y की लिमिट हो गई 0 से एक्स स्क्वायर और x की लिमिट हो गई 0 टू 5, सो y की लिमिट 0 से एक्स स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया पैराबोला, तो y इज इक्वल टू 0, सॉरी ये कर्व कौन सा है, ये शायद सेकंड क्वेश्चन का कुछ, यस, तो ये कर्व आपको मिल रहा है, तो कर्व क्या बनेगा देखिए, y इज इक्वल टू 0 यानी इस लाइन से ये वाला आपका पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यानी इस लाइन y इज इक्वल टू 0 से इस कर्व तक, यानी ये पार्ट हो गया,
या ये वाला पार्ट हो गया, दोनों ही, ये भी y इज इक्वल टू 0 लाइन है, ये भी कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी रीजन अभी ये मिला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बाउंडेड दोनों लाइन से। बट x की लिमिट क्या है 0 से 5, तो x इज इक्वल टू 0 क्या है, ये वाली लाइन है, और x इज इक्वल टू 5 यहाँ कहीं होगा, तो रीजन कौन सा बनेगा, ये वाला। चारों लिमिट से जो रीजन बन रहा है वो ये वाला राइट वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो x इक्वल टू 0 से लेकर 5 नहीं है, इस वाले पार्ट में है, तो केवल पार्ट क्या बनेगा, ये वाला। क्लियर, यानी ये तो यानी यहाँ y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ x इज इक्वल टू 5 है, तो यानी ये बाउंडेड रीजन हो गया। इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि फंक्शन इजी है, आप किसी के रिस्पेक्ट में इस केस में कर सकते हैं, क्योंकि इजी फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो आप ये, क्योंकि x के टर्म्स में लिमिट है, यानी y की पहले लिमिट है, तो आप पहले इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये y के रिस्पेक्ट में किया इन्होंने, तो x कांस्टेंट होगा, तो x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर तो फंक्शन है, ये एक्स वाई स्क्वायर है। इसको फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो x क्यूब के साथ y आ गया, और y स्क्वायर का क्या हो गया, y क्यूब बाई 3। y की लिमिट्स लगाई, तो टोटल फंक्शन x में आ गया। आप x इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x की लिमिट अब आके ये कर सकते हैं। तो इसमें वैसे इस क्वेश्चन में हमें रीजन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इजी फंक्शन है, तो आप ये पता है आपको ये y की लिमिट्स हैं, तो पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर x के रिस्पेक्ट में करना है। अदरवाइज रीजन बना लिया तो आप चेंज भी कर सकते हो, चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि पॉलिनोमियल केस में हमारा बहुत इजी होता है इंटीग्रेशन। क्लियर, तो मैंने वही दूसरा पार्ट आपको बताया है इस फिगर में। इस फिगर में क्या है, ये और ये लाइन। तो अगर आपको इसको सपोज पहले y के रिस्पेक्ट में करना होता, तो आप क्या करोगे, सॉरी y के रिस्पेक्ट में पहले है ही, x के रिस्पेक्ट में अगर करना होता, तो आप क्या करोगे, इस पूरे कर्व में फिर एक स्ट्रिप बनाओगे ये, तो लोअर लिमिट क्या मिल रही है इस कर्व से, इस कर्व क्या है x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट y, और अपर लिमिट क्या होगी x इज इक्वल टू 5। ऐसी y में यहाँ कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 से इस पॉइंट तक, तो इस पॉइंट में यानी इन दोनों लाइन को आप इंटरसेक्ट करना है, x इज इक्वल टू 5 इस कर्व में रखना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 25 आपका पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 से 25, और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y से x इज इक्वल टू 5। तो आप ऑर्डर चेंज करके भी कर सकते हो, यू विल गेट दी सेम आंसर। तो ऐसे ही आप और क्वेश्चन ट्राई करिए, बाकी कोई डाउट होगा तो बताइएगा। तो इसमें भी वही है, देखिए फंक्शन आपका एक्स वाई है, रीजन क्या है, एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 2a एंड द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो x एक्सिस यानी ये वाला पार्ट, x इज इक्वल टू 2a यहाँ कहीं लाइन होगी, x इज इक्वल टू 2a, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी ये हो गया पैराबोला। तो पैराबोला कौन सा होगा, ये वाला। तो बाउंडेड रीजन कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट। क्लियर, तो अब ये वाले पार्ट में आप देख लीजिए पूरा, या तो आप y के रिस्पेक्ट में पहले करिए या x के रिस्पेक्ट में करिए, दोनों से कर सकते हैं। यहाँ y की लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट इस कर्व से मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4a, और x यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी कर रहा है। अगर आप x के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं तो लोअर लिमिट यहाँ से मिलेगी, तो स्क्वायर रूट 4ay से यहाँ तक 2a तक जा रहा है, और y वैल्यू 0 से लेकर इस पॉइंट तक जा रही है, तो वो पॉइंट क्या है a। वैसे भी कर सकते हैं, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। तो दोनों तरीके से इन्होंने करा भी है, ठीक है। तो दोनों वे आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे ही अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है इवेल्युएट दिस फंक्शन है एक्स स्क्वायर, रीजन क्या है, रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय लाइंस x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 एंड द कर्व xy इज इक्वल टू 16। तो देखिए कर्व पूरा दिया है, x इज इक्वल टू y तो ये लाइन हो गई, y इज इक्वल टू 0 ये वाला लाइन हो गया, x इज इक्वल टू 8 ये लाइन हो गई। क्लियर, और xy इज इक्वल टू 16 जो कर्व होता है वो ये कर्व होगा, xy इज इक्वल टू 16। क्लियर, तो जो बाउंडेड रीजन है वो कौन सा हो गया, हमें चारों से बाउंडेड रीजन हो, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो ये वाला पार्ट हो गया। क्लियर, तो ये वाले पार्ट में अगर आप चेक करेंगे, अब देखिए आप इस कर्व में आप ऐसा नहीं है, देखिए अगर सपोज आप y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर आपने स्ट्रिप y के पैरेलल बनेगी, तो y के पैरेलल आपने यहाँ बनाई, तो लोअर लिमिट यहाँ से मिलेगी, अपर लिमिट यहाँ से मिलेगी। लेकिन अगर ये स्ट्रिप आपने यहाँ बनाई,
तो लोअर लिमिट तो सेम है, लेकिन अपर लिमिट अब हमें इस कर्व से मिल रही है। पहले हमें इस लाइन से मिल रही थी और इस वाले पार्ट में हमें इस कर्व से मिल रही है। तो यानी y का नेचर चेंज हो रहा है, यहाँ एक लाइन के थ्रू वेरी कर रहा है, यहाँ एक कर्व के थ्रू वेरी कर रहा है। तो दो पार्ट में अगर अपर लिमिट जा रही है, यानी हमें रीजन भी उतने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तो y सेम इस लाइन से वेरी कर रहा है, तो यहाँ तक एक रीजन बना दिया, और दूसरा इस पॉइंट के यानी इस m पॉइंट के बाद जो रीजन आ रहा है वो फिर कर्व से आने लगा है अपर लिमिट, यानी इस कर्व से लेकर यहाँ तक जा रहा है। तो दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर? एक तो m से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, m तक, 0 से लेकर m तक और m से लेकर l तक। y के दो नेचर हैं अपर लिमिट पर, लोअर लिमिट तो सेम है, अपर लिमिट पर दो नेचर चेंज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल इंटीग्रेशन जो था उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, x टू a टू m और दूसरा x m टू l। क्लियर? आप देख लीजिए, लिमिट देख लीजिए दोनों पार्ट में, तो दो पार्ट में आपने डिवाइड किया। अब पहले आप y की लिमिट निकाल रहे हैं, तो देखिए पहले वाले पार्ट में y की लोअर लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर इस लाइन तक। इस लाइन पर, ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू x, यानी y की लिमिट होगी 0 से x, तो y की लिमिट होगी 0 टू x। और यहाँ से यहाँ तक x कितना वेरी कर रहा है, तो देखिए x तो मिनिमम तो वैल्यू 0 है, इससे लेकर m तक जा रहा है। अब m पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, वो आपको किससे मिलेगी, इस इंटरसेक्शन से। ये इंटरसेक्शन है, यानी ये वाला कर्व और ये वाले दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू x, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू x रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो यानी x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली, इस पॉइंट पर 4। क्लियर? तो अगर x 4 है तो y भी 4 होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू x लाइन है ये। तो अगर x 4 है तो y भी 4 होगा, तो 4 पॉइंट हो गया। तो x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जा रही है, 4 तक इस कर्व पर। तो x 0 से 4, फंक्शन सेम है। अब दूसरा वाला पार्ट देखिए, लोअर लिमिट तो सेम है 0, y की लोअर लिमिट क्या है 0 से अपर लिमिट। अपर लिमिट अब इस कर्व से मिलेगी, इस कर्व पर y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 16 बाय x। सो 0 से लेकर 16 बाय x, और अब x की इस पार्ट पर x की लिमिट क्या हो जाएंगी, मिनिमम लिमिट क्या है इस पार्ट पर, आप यहां से यहां तक जा रहे हैं ना, इसी केवल इसकी बात करें इस रीजन की, तो इस पार्ट में मिनिमम x की वैल्यू ये है यानी 4, और मैक्सिमम यहां तक जा रही है l तक। वो l क्या है, x इज इक्वल टू 8 लाइन जो बनी थी, तो x इज इक्वल टू 8, सो 4 से 8, सो x इज इक्वल टू 4 टू 8। बस आपका क्लियर हो गया रीजन। तो पहले ये x के टर्म्स में लिमिट है, यानी y की लिमिट्स हैं, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। तो x स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, केवल क्या आ जाएगा y, लिमिट रखिए। ऐसे ही x स्क्वायर तो कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में, तो पहले y आ गया, लिमिट रखिए, अब पूरा फंक्शन x में आ गया, इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं, सपोज इसी क्वेश्चन को कि हम पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप अगर स्ट्रिप यहां से यहां तक बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने स्ट्रिप यहां से यहां बनाई तो अलग आएगा। तो इसको भी आपको पार्टीशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस पॉइंट्स तक ये वाला पार्ट अलग आपको अपर लिमिट देगा और ये वाला पार्ट अलग देगा। तो यहां से यहां तक एक रीजन, x की लोअर लिमिट तो पूरे रीजन में सेम है, यहां से मिलेगी, लेकिन यहां पर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ से अपर लिमिट तो ये लाइन मिल रही है, लेकिन इससे ऊपर वाले रीजन में x की लिमिट हमें यहाँ से मिलेगी। तो इसमें भी हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, पर आंसर सेम आएगा। 0 टू a 0 टू b कांस्टेंट लिमिट है, तो किसी भी रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो। पहले इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कौन सी x की लिमिट है, कौन सी y की लिमिट है। अगर कांस्टेंट लिमिट है तो आप चाहे इसको x की लिमिट मान लीजिए, चाहे इसको x की लिमिट मान लीजिए। क्लियर? सो x इक्वल टू 0 टू a, y इक्वल टू 0 टू b, या फिर आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 टू b, y इज इक्वल टू 0 टू a। जब कांस्टेंट लिमिट होंगी तो किसी भी ऑर्डर में आप किसी भी अज्यूम कर लीजिए, एक लिमिट y की है, एक कांस्टेंट की है, कोई सी भी आप इंटरचेंजेबली उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये रीजन है। तो चाहे आप यहां से यहां तक करोगे या यहां से यहां तक करोगे, सेम आंसर आएगा। क्लियर? अगर आप रेक्टेंगल बनाओगे तो एरिया आप दूसरा क्या बनेगा, अगर सपोज हमने पहली वाली लिमिट b वाली लिमिट x की मान ली, तो x इज इक्वल टू 0 से b ये होगा, और y इज इक्वल टू 0 से a ये होगा, तो भी वही रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट लिमिट अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी ऑर्डर में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। आप पहली वाली लिमिट किसी, चाहे y की अज्यूम कर लीजिए, चाहे x की अज्यूम कर लीजिए, तो दूसरी वाली दूसरे वेरिएबल की हो जाएगी, तो आंसर सेम आएगा। इस केस में देखिए
जो फर्स्ट लिमिट है वो क्या है 1 से लेकर x, तो x के टर्म्स में है यानी ये y की लिमिट होंगी, तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, लिमिट अप्लाई कीजिए 1 से x, फिर टोटल फंक्शन x में आ जाएगा, फिर ये x की लिमिट हो जाएंगी 1 से 2। क्लियर? इन्होंने रीजन भी बनाया है, बाकी रीजन की ऐसी जरूरत नहीं है। तो रीजन क्या है, क्योंकि ये x के टर्म्स में लिमिट है अंदर वाली, तो y इज इक्वल टू 1 से x, सो y इज इक्वल टू 1 ये लाइन होगी और y इज इक्वल टू x ये लाइन होगी। तो y इज इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है 1, सो 1 से लेकर x तक, यानी ये वाला पार्ट हो गया, यानी अभी ये वाला पार्ट आया है। अब x की लिमिट क्या आ गई है 1 से 2, तो x इज इक्वल टू 1 यहां कहीं होगा और x इज इक्वल टू 2 यहां कहीं होगा, तो बाउंडेड रीजन कौन सा बना, ये वाला पार्ट। आपको रीजन मिल गया, आप किसी भी ऑर्डर में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप किसी भी डायरेक्ट जैसा दिया है वैसे सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन इजी है। ठीक है, तो पहले x की, क्योंकि x के टर्म्स में लिमिट है यानी y की लिमिट है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, फिर x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। ये भी कि देखिए लिमिट क्या है, स्क्वायर रूट y से लेकर 2 माइनस वाई, तो किसके टर्म्स में है, y के टर्म्स में है लिमिट, तो ये लिमिट किसकी होंगी, x की लिमिट होंगी, तो पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x क्यूब बाय 3, आप ये लिमिट्स अप्लाई कीजिए, फिर y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। रीजन अगर देखना है तो देखिए x की लोअर लिमिट क्या है, स्क्वायर रूट y, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y से कहां तक वेरी कर रहा है, तो स्क्वायर रूट y वाली लाइन देखिए पहले, y x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y का मतलब हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला पैराबोला हो गया। फिर अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, तो ये एक लाइन होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो वो ये लाइन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर? यानी इस कर्व से इस लाइन तक, यानी अभी तक हमारा ये वाला पार्ट हो गया पूरा। ठीक है, अब इसमें फिर y की लिमिट देख लेते हैं, तो y की सॉरी हाँ यस y की, क्योंकि ये y के टर्म्स में तो x की लिमिट, नेक्स्ट y की लिमिट है 0 से 1, तो 0 y इज इक्वल टू 0 क्या है, ये वाली लाइन है, और y इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा, वो हम चेक कर लेंगे कि ये इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर है पैराबोला और लाइन के, या फिर ऊपर है इसके, मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, ये है देखिए, ये पैराबोला है और ये लाइन है, y इज इक्वल टू 0 ये लाइन है। अब y इज इक्वल टू 1 जो है वो लाइन या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी या यहाँ ऊपर होगी, तो वो हमें इंटरसेक्शन से मिल जाएगा, जब ये वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई को, तो उससे हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से आप या तो एक्स स्क्वायर की जगह 2 माइनस वाई का स्क्वायर रख दीजिए, या y की जगह 2 माइनस एक्स रख दीजिए, तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी x में, उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ हमें y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, यानी y इक्वल टू 1 क्या होगा, इनके जस्ट इंटरसेक्शन पर, इंटरसेक्शन पर। तो रीजन जो ये था अब तक, वो y इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक है, तो यानी ये हमारा कट हो गया, हमारा रीजन अब बचा जो चारों लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, बाउंडेड है, वो है ये वाला रीजन। क्लियर? अब देख लेते हैं इसमें, तो इसमें देखिए इंटीग्रेट करना है, तो क्योंकि फंक्शन इजी है इसलिए किसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, तो इन्होंने वही किया है, पहले x के रिस्पेक्ट में ही कर दिया है, तो एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट्स अप्लाई की, उसके बाद ये पॉलिनोमियल बना, उसको फिर से इंटीग्रेट किया, y की लिमिट अब ये आ गया। आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, अदरवाइज फिर आप क्या करोगे, क्योंकि इस केस में भी एक ही रीजन बनेगा, आप x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो तो लोअर लिमिट यहाँ से मिलेगी, अपर लिमिट यहाँ से मिलेगी, तो x की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, y है इस पूरे कर्व पर। क्लियर? तो इस पूरे कर्व पर यह है, तो x की लोअर लिमिट होगी माइनस स्क्वायर रूट वाई और अपर लिमिट हो जाएगी प्लस स्क्वायर रूट वाई, सॉरी अच्छा, x के रिस्पेक्ट में तो ये ऑलरेडी दिया है, आपको क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट करना है पहले, तो y के आपको पैरेलल आपका ये वो बनेगा स्ट्रिप, तो लोअर लिमिट तो हमें इस कर्व से मिलेगी y की, यानी एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट कहां तक जाएगी, y इज इक्वल टू 1 तक, और अगर x की हम इसमें तो x यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वेरी कर रहा है, तो इस केस में हमें ये वाले पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है और इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x की वैल्यू यहाँ -1 से +1 तक जाएगी,
तो आप वैसे उस रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हो। तो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको बस देखिए इस केस में केवल हमें फिगर है, रीजन क्या है, y इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये रीजन है, y इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गया। क्लियर? तो बाउंडेड रीजन क्या हुआ, केवल ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इस वाले पार्ट में देख लीजिए आपके किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इन्होंने दोनों तरीके से किया है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पैसे तो पॉलिनोमियल है, आप किसी भी रिस्पेक्ट में कर दीजिए, इजी होगा। लेकिन अब आपको रीजन में अगर देखा जाए तो इस रीजन में देखिए, अब इस रीजन में अगर हम x के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं तो x के पैरेलल आपने लाइन बनाई, तो लोअर लिमिट पूरा हमें ये कर्व देगा यानी पैराबोला, और अपर लिमिट हमें ये लाइन देगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। पूरे रीजन में एक ही चीज है, तो इस केस में हमें एक ही रीजन बनेगा, और y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पर y 1 है यानी ये वाले पॉइंट तक। तो इस केस में हमें एक ही बार में सॉल्व करना पड़ेगा, एक ही रीजन। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम y के रिस्पेक्ट में अगर पहले करना चाहते हैं, तो क्योंकि अब आप देखो y अगर स्ट्रिप आपने यहाँ बनाई तो यहाँ से यहाँ, तो अपर लिमिट हमें यहाँ इस लाइन से मिलेगी, लोअर लिमिट हमें इस लाइन से मिलेगी। अगर लेकिन आपने स्ट्रिप यहाँ बनाई तो लोअर लिमिट तो सेम है, लेकिन अपर लिमिट आपका पैराबोला से मिल रही है। पहले लाइन से मिल रही थी, इस वाली लाइन से, अब आपको पैराबोला से मिलेगी, यानी चेंज हो रहा है नेचर। तो वेरिएशन का अगर नेचर चेंज हो रहा है तो उतने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन्होंने यही किया है, देखिए इस पॉइंट से आपने ये डिवाइड कर दिया रीजन। इस पार्ट राइट हैंड पार्ट पर तो y की अपर लिमिट आपको इस लाइन से मिलेगी, और लेफ्ट हैंड वाले रीजन में आपको अपर लिमिट आपको पैराबोला से मिलेगी। इसलिए दो पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने R1 R2 किया, इस लोअर लिमिट दोनों में सेम है, अपर लिमिट यहाँ लाइन से मिलेगी 2 माइनस एक्स, और इस कर्व से मिलेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो y की अपर लिमिट हो जाएगी स्क्वायर रूट एक्स। तो पहला वाला उन्होंने यही किया है, 0 से स्क्वायर रूट एक्स और 0 से 1 फर्स्ट रीजन, और दूसरा क्या हो जाएगा, 0 से ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये 2 माइनस एक्स होना चाहिए, क्योंकि लाइन क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की अपर लिमिट क्या होगी 2 माइनस एक्स, तो ये स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। दिस इज 0 टू 2 माइनस एक्स, और x की लिमिट है 1 टू 2। अब x की लिमिट दोनों में अलग है, देखिए यहाँ में पहले वाले रीजन में 0 से लेकर इस पॉइंट तक, यानी यहाँ इस पॉइंट तक, और दूसरे वाले रीजन में इस मतलब उसी सेम पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो 0 से 1, 1 से 2, ये x की लिमिट हो जाएंगे। तो y के रिस्पेक्ट में अगर पहले करोगे तो दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा रीजन को, क्योंकि y दो तरीके से वेरी कर रहा है। लेकिन अगर x के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन करोगे तो एक ही पार्ट में सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों तरीके से किया है, दोनों से आंसर हमारा सेम आ रहा है। r is the quadrant of the circle x is given, so means इस क्वाड्रेंट पर हमें इंटीग्रेट करना है, सर्कल का ये क्वाड्रेंट आपको लेना है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट देख लीजिए आपको किसके रिस्पेक्ट में पहले करना है। अगर आप y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो तो आपकी ये स्ट्रिप बनेगी, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इस सर्कल से मिलेगी। तो इस सर्कल पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सर्कल 1 से है, लेकिन ये सर्कल है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसकी रेडियस है, ये a स्क्वायर है। सो स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट 0 से लेकर a तक जाएगी। मैक्सिमम लिमिट क्या है, इस पॉइंट तक यानी a तक। सो x की वैल्यू 0 टू a। ऐसे ही अब आपको बस ये अदर फॉर्म्स है, ये r और थीटा में है, दो वेरिएबल है, यानी ये भी डबल इंटीग्रेशन है। वेरिएबल्स क्या हो गए, r थीटा। तो आपको बस लिमिट्स देखनी है किसकी कौन सी लिमिट है। ये पहली लिमिट है 0 से लेकर साइन थीटा, तो लिमिट्स जो है थीटा के टर्म्स में, यानी वैल्यू किसकी होगी, r की। तो पहले आपको r के रिस्पेक्ट में करना है, तो r का इंटीग्रेशन क्या होगा, r स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स हो गई 0 से साइन थीटा। सब्स्टिट्यूट कीजिए, पूरा फंक्शन हो गया थीटा में, अब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। ये 0 से b, 0 से a है, तो आपकी कांस्टेंट लिमिट हो गई, यानी किसी भी ऑर्डर में आप अप्लाई कर, पहले या तो इसको x की मान लीजिए फिर y की, या फिर पहले y की फिर x की, दोनों से सेम आंसर आएगा। ये 0 से x है, यानी इन टर्म्स ऑफ x लिमिट है, यानी y की लिमिट होगी, तो पहले आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर? फिर x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही ये एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स है, यानी x के टर्म्स में लिमिट है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, फिर x के रिस्पेक्ट में होगा। ये 0 से y बाई 2 है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि x की लिमिट्स है, तो पहले x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो y को कांस्टेंट रखना है, फिर y के रिस्पेक्ट में करिए।
0 से x यानी ये y की लिमिट है तो पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में। 0 से y/2 ये देखिए प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू, पहले तो इसमें तो हमें दोनों तरीके से कर दीजिए, पहले ये y के टर्म्स में लिमिट है यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, फिर y के रिस्पेक्ट में जो आंसर आएगा, प्लस ये पहले y के रिस्पेक्ट में कीजिए फिर x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों से सेम आंसर हमें ये प्रूफ करना है 7/6 7/6। ठीक है, ये कांस्टेंट लिमिट है इसलिए किसी भी ऑर्डर में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी कांस्टेंट लिमिट है, किसी भी ऑर्डर में करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये भी रीजन क्या है, ये वाला बाउंडेड है तो या तो आप ये x के रिस्पेक्ट में पहले कीजिए तो ऐसे लिमिट निकालना है, अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट मिलेगी, दूसरी की कांस्टेंट लिमिट हो जाएगी। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू एक्स, यानी इस कर्व से इस लाइन तक, यानी ये वाला पार्ट हो गया। तो उसमें भी आपको पता है ये रीजन है, तो चाहे पहले आप x के रिस्पेक्ट में कीजिए तो ऐसे स्ट्रिप बनानी है, और y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे स्ट्रिप बनानी है उस कर्व पर। So in the next lecture, we will discuss about how to change the order of integration. Clear?